रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। If I give you 30 lakh today, so which car will you buy? Again buy the XUV 700. तो मान गए आपकी पार की नजर और XUV 700 दोनों को। If you ask me for the next car, I'll go for the Mercedes. कौन सी थी वो? EQC। EQC. हाँ, EQC। So if you ask me for the next car after 5 years, I'll go for बैटरी वाली होता है? नहीं, बैटरी वाली होती है, कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक। हाँ, ये क्या उसी है? EQC बैटरी वाली। So after 5 years, if you ask me about my car which I'm going to buy, I'll definitely go with the electric car, and that's going to be my Mercedes QAC. Huh? Huh? EQC। EQC। Mercedes EQC. So these are all the 5 features I like more about the car. क्यों कट चल आगे। मैं अभी शुरू किया, चल जल्दी शुरू किया प्रोग्राम। हो गया, 5 मिनट जल्दी कर। ओके, सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म और भी होते हैं? हैं। क्या? बाकी जुगाड़ कर जाके करेंगे अब। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मानविक बदन और आज मैं खड़ा हूँ अपनी XUV 700 के सामने। तो चलिए अब इस XUV 700 के ओनर को बुलाते हैं। तो आज आपको सारा ओनर रिव्यू मिलेगा। 1000 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो चलिए आपके सारे जो वो है आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इनके ओनर को बुलाते हैं। नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पर नाम है राजेश बदान। तो यस, ही इज़ माय फादर एंड आई एम हिज सन। तो दोस्तों, ही इज़ मानविक बदन एंड आई एम राजेश बदन। एज यू ऑल नो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। तो हमने सोचा था कुछ QA सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस के क्वेरी एक ही वीडियो के अंदर दे दें। हमें रेगुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली रिगार्डिंग द XUV 700। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने पेन डाउन कर लिए हैं। वी डिड ऑल द होमवर्क डायरीज एट द बैक साइड ऑफ अस। वी हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस हियर। So the Manvik will host this particular video, and he's going to ask me all the questions, and I'll try to answer my level best to solve all your queries. So let's start, friends. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? Actually, friends, I am an IT professional and I own an IT company with the name of Daksha Digitas. I'll give the website link in this description. You can check it out. And I am into this business since last 15 years. I offer branding services, digital marketing services, website development, mobile application development, all kind of IT services we are providing under my company. So you can do check that in the description. सो व्हाई ओनली XUV 700? कोई और कार आपने देखी होगी, तो XUV 700 ही क्यों? फ्रेंड्स, XUV 700 को मेरे को बाय करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था दैट एक्चुअली आई एम लुकिंग अ बजटेड SUV कार. दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी. Actually, we were planning to buy 2 different cars. One for myself, I want to upgrade my car, and second is for my wife, and she needs automatic car. So in collectively we have for 2 cars, the budget we allocated was 25 lakhs. So for myself I allocate the budget is 15 lakh, and for my wife car I allocate 10 lakh rupees. So I was looking SUV. That was my first priority. क्योंकि अभी ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़ में आप देखेंगे इतना ज़्यादा रश नहीं है. सो यू कैन अफोर्ड SUV ड्राइव. आप चला सकते हैं. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इज़ वेरी रेयर हेयर. So at least for next 4 to 5 years, you can afford a big car like XUV 700 or any SUV cars you can
ड्राइव ऑन द रोड विदाउट हैसल, तो मैंने सोचा कि लेट्स हैव फन विद द SUV फॉर एटलीस्ट फॉर 3-4-5 years, next 5 years, and then I'll definitely going to switch my car to the compact SUV in my coming future. So that's my basic priority. तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको इस XUV700 में क्या अच्छा लगा और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ थी जो आपने इसे लिया? Friends, the main priority is the SUV. That's the first point I was looking for. The second is the sunroof. We need if any car will definitely need a sunroof. That's a huge demand of Manvik and my family. We need a SUV with the sunroof and the SUV. So this is the only car which is fit into my budget, and it's an Indian car, and I did a lot of research regarding the car, so I found this excellent. I found this one of the best car available in my budget and in the market, Indian market at the moment. And the next question for Rajesh Badhan is, what other cars you explored? See friends, I explored different cars. मैंने काफ़ी सारे कारें देखी XUV के अंदर, like I seen Hyundai Creta मैंने देखी थी. I seen Tata Safari, I seen Tata Harrier मैंने देखी, MG Aster मैंने देखी, MG Hector भी मैंने एक्सप्लोर की. तो ये सारी लिस्ट ऑफ कार्स थी. फाइनली चीज़ें जो मैंने एक्सप्लोर की, अपनी सर्च को नैरो डाउन किया, जैसे कि सफारी को मैंने एलिमिनेट किया फ्रॉम माई लिस्ट ऑफ कार्स बिकॉज दैट कॉस्ट मी अ लॉट. वो काफ़ी मुझे कॉस्ट कर रही थी, और मोर और लेस दैट्स अ वेरी गुड कार, एंड द टाटा इज़ इक्वली एक्सीलेंट कंपनी. दे प्रोड्यूसिंग ए वेरी गुड कार. मेरे को उसका एलिमिनेटेड करने का दो ही कारण थे. फर्स्ट इज़ कि दैट्स नॉट फिटिंग इन टू माई बजट, एंड सेकेंड द लुक ऑफ दैट कार, दैट्स मोर लुक लाइक अ 7-seater ऑफ द हैरियर वर्जन. सो that's the main reason I eliminate the Safari, and the second I eliminate was the Harrier because it's not the look and feel of that car is I like that a lot. बहुत मुझे अच्छी पसंद थी, बस मुझे उसकी एक टच स्क्रीन इतनी पसंद नहीं आई, काफ़ी छोटे साइज़ की थी. सेकंड, वो कार पेट्रोल में नहीं आती. माई डेली ड्राइव इज़ वेरी लेस, सो आई प्रेफर अ पेट्रोल कार ओनली. सो टाटा हैरियर भी मैं चॉइस कर सकता था, तो अगेन वो पेट्रोल में नहीं आती, तो वो एक कारण था जिसको कि मुझे टाटा हैरियर को एलिमिनेट करना पड़ा. थर्ड, MG हेक्टर और MG एस्टर की बात करें, MG हेक्टर और एस्टर को, although it's a very good company, the service support, their staff was very cooperative. I've been to them couple of times. I visited their showrooms. The hospitality they are offering is the excellent comparing to any other car company. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. MG are giving excellent hospitality, excellent, they are building excellent cars. तो मेरा only reason to eliminate those cars just because of company is owned by a Chinese person. Although it's a British company, but owned by a Chinese, and there are continuously couple of conflicts going on with the India and China, and God knows shut down lot of Chinese application in recent time. तो जब भी आप देखें तोपें तनी रहती हैं दोनों साइड, तो कभी भी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट दैट वाज अगेन अ रीज़न कि मेरे को उसको लिस्ट से आउट करना पड़ा. व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग द कार दैट टाइम, चाइना एंड इंडिया situation is not very good, so that was the reason I have to eliminate that from my list. And next to that is Hyundai Creta. I like that car very much, but the thing is I already shortlisted that into my list, but जब मैं उसको बुकिंग कराने के लिए जा रहा था, तो तब वो Creta XS was my priority because उसमें सनरूफ आता था, तो मैं वो उसके लिए भी जा रहा था. बट एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने बुकिंग के लिए गया Hyundai में, तो उन्होंने क्या किया कि इंफोटेनमेंट सिस्टम ही उससे हटा दिया. SX मॉडल से एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया, SX एग्जीक्यूटिव, जिसमें वो इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले स्क्रीन ही नहीं थी. तो आई फाउंड दैट वेरी बैड, एंड प्लस द स्टाफ एंड द हॉस्पिटैलिटी आई डोंट लाइक दैट मच. दे हार्डली केयर अबाउट देयर कस्टमर्स व्हेन यू विजिटिंग देम. आई विजिटेड ट्वाइस, दे हैवंट ऑफर्ड मी अ टेस्ट ड्राइव इन माई 2 visits. Still I didn't like their approach towards the customer. So that's the reason I eliminate the Hyundai Creta. And the last option I have with me is only XUV700, and that's the reason. This is my journey of shortlisting the cars, and finally I decided to purchase XUV700. Okay, so your next question is that when did you purchase this car?
आई ट्राई टू बुक ऑन 7th of October। जैसे ओपनिंग शुरू हुई मैंने ट्राई किया अपने घर से लैपटॉप में मैंने ट्राई किया बुक करने की, बट इतना प्रॉब्लम थी, इतने लोग वेबसाइट पे लैंड हो रहे थे कि मैं उसको बुक ही नहीं कर पाया। एट दैट टाइम बुकिंग ही नहीं हुई, सर्वर डाउन के एरर आने लग पड़े, तो मेरी से बुकिंग नहीं हुई 7th को। सो वेरी नेक्स्ट डे आई विजिटेड महिंद्रा डीलरशिप एंड आई मेड द बुकिंग ऑन 8th of October by paying them a cash। Okay, so when did you get the XUV700's delivery? Okay, see friends, I got the delivery on 3rd of November। So I am amongst the top 800 lucky people who got the delivery before Diwali। My birthday was on Deepavali, so I was scheduling the delivery just one day prior to my birthday, which is 3rd and 4th was my birthday, 4th of November on the Diwali। So I got the delivery on 3rd of November। So I consider myself very lucky that I got the delivery in very short time, despite that I booked one day late 8th of October, still I got the delivery ahead of lot of people, just because this is a petrol variant and the Mahindra assured that petrol variant they are going to deliver first week of November। So I was among those people who got the delivery on 3rd of November। Okay, so next question is आपने एक चीज़ बताना भूल गए कि ये इस कार का मॉडल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊँ, मेरे आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे एंड मानविक नोज वेरी वेल, और हमने भी काफ़ी बार आपको बताया है। जो मॉडल मैंने शॉर्टलिस्ट किया था अपने अकॉर्डिंग टू माय बजट, दैट इज़ AX5 XUV700 AX5 7 सीटर मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल, ये वेरिएंट है, 7 सीटर इसमें आता है। तो माय मॉडल इज़ AX5। कलर यू ऑलरेडी सीइंग, इट्स अ सिल्वर कलर। Okay, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हम एक और मेन बात पे आते हैं, ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा आपको? सी फ्रेंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछे, तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने 8 को बुकिंग की थी। आई एम अमंग्स द टॉप 25,000 जिन्होंने बुकिंग की थी फर्स्ट स्लॉट के अंदर ही। तो आई वॉज कवर्ड अंडर प्राइस गारंटी। जो मुझे प्राइस मिला दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी प्राइस दे ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट 25,000 बायर्स। और ऑन रोड मुझे इंक्लूडिंग एवरीथिंग दिस व्हीकल कॉस्ट मी 18 lakh rupees। That include insurance, everything, and it includes the 30,000 of accessories as well। So the total cost for the EX5 variant 7-seater petrol manual transmission cost me 18 lakh rupees Okay. in Punjab। I live in Mohali adjoining Chandigarh। So this is the 18 lakh is what cost me a total on road। तो आपको तो बड़े अच्छे प्राइस में मिल गई कार। That's the introductory price I got। तो अगला आपका क्वेश्चन है, बेस्ट फीचर्स आपको कौन से लगे इस कार में, जो आपको बहुत अट्रैक्ट किया इस कार को लेने के लिए? सी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फीचर हैं इस कार में। अगर आप AX7 वेरिएंट के टॉप लग्जरी मॉडल में जाएंगे तो कम अप विद अ लॉट ऑफ फीचर, बट जो मेरी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग था, आई गॉट ऑल द फीचर इनटू दिस कार। जो मेरे को जो मेरी नीड थी बेसिकली, वो AX5 वेरिएंट ने पूरे कवर कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेन अट्रैक्शन जो सबसे मोस्ट अट्रैक्ट किया मुझे इस मॉडल के लिए, द फर्स्ट थिंग इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, द टच स्क्रीन यू कैन सी दैट्स अ ह्यूज, द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट आई लाइक द मोस्ट, द शेप ऑफ द कार आई लाइक द बेस्ट इन द सेगमेंट। बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने किया है। सनरूफ दे कॉल्ड इट स्काई रूफ बिकॉज इट्स ह्यूज इन द सेगमेंट, दैट आई लाइक द मोस्ट। देन another thing I like, which is the alloy wheel. They offer diamond cut alloy wheel that attract me the most, and the smart door handle which also attract me a lot। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसके हमें वो कमेंट्स आ रहे हैं, माइलेज कितना है? दोस्तों, this is the biggest questions we have been asked in our YouTube channel, that is अगर हम टोटल क्वेश्चंस को नैरो डाउन करें तो 7 out of 10 people are asking the same question, what is the mileage you are getting out of this vehicle? दोस्तों, this is a manual transmission, you can control everything in this car, it's not automatic। So the mileage I am getting in the city, that is approximately 9 km in the city, bumper to bumper if you say, and the highway I tested this vehicle, so I am getting in the highway 12 plus, so that's quite a good mileage according to me, considering the size of the vehicle and it's a 7-seater also, so the mileage what I am getting is I am highly satisfied with that। ओके, तो माइलेज तो बड़ी अच्छी निकल के आई है। अगला क्वेश्चन है,
about the delivery, how they managed your delivery and how special they made it. See, my delivery is concerned. I'm highly satisfied with the delivery. I got the vehicle on time. But if you see the online reviews of the other customer who booked the diesel version and other version, so the delivery date they are getting, that's a very delayed. So like I got some comments from my our YouTube channel followers that they booked the vehicle on 7th of October, and the delivery date what they have got is August of 2022. So that's way late. So I suggest to the Mahindra and Mahindra team, please look into this matter, और अब जल्द से जल्द डिलीवरी इंश्योर करें जिन्होंने भी बुकिंग की, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 25,000 विच यू प्रॉमिस दैट you are going to deliver them the vehicle very soon. We understand, I mean, there was no guarantee of the delivery time you have given to the 25,000 people who booked on the 7th. The only promise given by Mahindra was the price guarantee, like the offer price they will ensure to the first 25,000. But I don't think Mahindra has mentioned anywhere that the delivery will be ensured on this particular date for first 25,000. So the 25,000 people who booked in the first slot, those are covered under the price guarantee, the offer price. And delivery, as you all know friends, Mahindra ने जो बताया है regarding the delivery, they are only going to deliver 14,000 vehicles till 14th of Jan. So जो 25,000 भी बुकिंग हुई है, obviously everyone knows that you have to wait, you all have to wait little longer than the 14th of January. 14,000 को तो दे देंगे obviously, they ensured 14,000 till 14th of November. But उसके बाद तो obviously सबको पता ही था कि they have to wait, but some got it very surprised that the delivery date they are getting it expanded more than a 6 month or even 1 year. So that's not a good thing. I don't think anyone can wait for any car for 1 year because they have other priorities to be set. So अगर वो 1 साल कार के लिए वेट करेंगे, so how can they manage the other thing? So this is my humble request to the Mahindra and team कि आप इंश्योर करें डिलीवरी if you have the mechanism, और एटलीस्ट अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप बुकिंग डेट्स पहले भी बताएं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा यूज़र्स के लिए कि बुक करवाएं या ना करवाएं. बुकिंग के बाद वो कैंसिलेशन करवा रहे हैं. सो इट्स अगेन अ वेरी बैड नेगेटिव फीडबैक्स गोइंग फॉर द महिंद्रा. when you made such a beautiful vehicle, you should ensure the proper displacement of the vehicle to the end user. Okay, so I agree with your point. So my next question is that how much will you rate this car out of 10 and why? See friend, as you already knows, this car that met all my expectation. So the rate I'll give you to this car is 9 out of 10. If you ask me only about the vehicle, I'll give 10 out of 10. If you ask me considering the after sale service or the Mahindra support, then I have to cut 1 point for that and I'll give 9 out of 10 in total. But if you ask me about only about the performance of the vehicle, how much I am satisfied with this, I'll give 10 out of 10. So that's my rating for this car. Okay, so what was your driving experience of this vehicle? See, my driving experience is excellent. The suspension is very good. The car suspensions are very good. The steering, the handling of the car, the blind spot, and the other features, everything I found it excellent. They built this vehicle very nicely. So hats off to the Mahindra for this vehicle. So you are getting very good responses from this car, and we all know this car is very powerful, so everyone would love to drive this car. So let's get to our next question. If I give you 30 lakh today, which I cannot give, but if I give you, so which car will you buy today? See, in today's scenario, if you give me 30 lakhs today, so I'll again buy the XUV 700 AX7 model luxury variant. So that's my priority for today. If I'll compare all the available vehicles in the market, so I'll again go for the XUV 700. So let's get to our next question. So our next question is, which will be your next car? See, I'll own this car at least for the next 5 years because तब तक यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया, तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी जर्नी को. बट आफ्टर 5 years obviously the traffic will going to the increase in this tri-city also.
So driving a big car XUV in city is quite डिफ़िकल्ट। और पेट्रोल के रेट भी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले मुझे लगता है 5 साल तक इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज। काफ़ी कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। तो इफ़ यू आस्क मी फॉर द नेक्स्ट कार, आई विल गो फॉर द इलेक्ट्रिक कार, दैट इज़ द फ्यूचर बेसिकली, एंड दैट गिव यू अ मच बेटर माइलेज कंपेयरिंग टू द पेट्रोल डीजल, और also take care of the environment as well. So I'll go for the electric car definitely, and that's going to be my Mercedes EQC. So that's going to be my next car. But that recently launched, God knows उससे भी अच्छी कारें तब तक आ सकती हैं। बहुत ही साइलेंट कार है, very feature friendly. Definitely I'll buy the compact SUV but in electric. So the next question is what feedbacks will you give to dealer and support from the Mahindra? See, if you ask me about the dealership experience, I'll rate 7 out of 10 or 8 out of 10, not more than that, because there was a huge rush when this vehicle launched. They all got stuck, so the support was not that much good, and even post-support services related to the software related issue, they are not handling it nicely. And Mahindra, I am okay with that. That's my first experience with the Mahindra. And previously I owned Hyundai and Ford car, so my experience was good with them. But this is my first car with Mahindra, so I'll rate them 7 out of 10, not more than that. Till my experience of 1000 kilometer driven with XUV 700. God knows they might be improved in future. Let's see. I'll pray for that. But as of now, I cannot give them more than 7 to 8 out of 10. Let's go to our next question. आपने जो भी एसेसरीज लगवाई हैं 30,000 में, उसके आपको क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों लगवाई? दोस्तों, जो एक्सेसरीज़ मुझे मिली थी 30,000 रुपीज़ की, वो ऑन रोड प्राइस के अंदर ही दी थी। दैट्स एसेंशियल थिंग दे ऑफर्ड मी इन 30,000 रुपीज़। तो मैंने उसमें क्या क्या लगवाया मैं आपको बड़ा क्विकली बता देता हूँ। वो सबसे पहले मैंने सीट कवर लगवाए, क्योंकि EX5 मॉडल के अंदर जो सीट कवर आते हैं वो ब्लू एंड ब्लैक इन कलर आते हैं, तो वो मैच नहीं करते मॉडल के साथ। तो मैंने सीट कवर लगवाए जो कि वाइट इन ऑफ वाइट में मुझे मिले थे, तो मैंने वो लगवाए। वो मुझे कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस कुछ GST भी इंक्लूड होता है उसमें। सेकंड मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सेसरीज में लगाई थी, वो रियर कैमरा मैंने लगवाया दोस्तों, जो कॉस्ट की है मुझे 3,000 प्लस GST। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सेसरीज़ में लगाई जो कि 30,000 मुझे ऑन रोड, जो मैंने 18 लाख रुपीज़ बताया आपको, इसके अंदर ही मुझे मिला है सारा कुछ। उसके बाद मैंने 7D मैट्स लगाए, जो भी अगेन इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। 7D मैट मुझे कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़। उसके अलावा मैंने स्कफ प्लेट्स लगवाई चारों विंडोज़ में, जो मुझे कॉस्ट की 5,000 के आसपास इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने लगवाई। अभी दे स्टिल ओन मी 2,000 or 3,000 pending, so I'll visit them and I'll go for the flap in my balance payment, but Mahindra dealer own me. So these all are I got into 30,000 of accessories. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने पॉजिटिव्स तो बहुत बता दिए इस कार के, अब कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, तो नेगेटिव्स आपको 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं नेगेटिव जो आपको कार के लगा? दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव इसमें अब तक तो नहीं मिला। 1000 मैंने ड्रिवन कर ली है कार, तो एज सच आई डिडंट फाउंड एनी मच नेगेटिव अबाउट दिस। और 3-4 चीज़ें आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो बूट स्पेस जो है इसमें बहुत ही कम है। आई डोंट इवन एबल टू एडजस्ट द स्कूल बैग ऑफ मानविक इन द बैक साइड अगर मेरे ऑल 7 सीट्स आर ओपन। सो दैट वाज द वन इशू आई फेस्ड इन दिस। सेकंड नेगेटिव अबाउट द रियर व्यू कैमरा इन EX5 मॉडल, वो आपको इनबिल्ट नहीं मिलता, आपको एक्सेसरीज़ में लगवाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करवा लिया, मैंने उसको वीडियो भी बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने डीलरशिप से इंस्टॉल करवाया, बट द क्वालिटी ऑफ दैट कैमरा इज़ नॉट दैट मच गुड। उनकी जो गाइडेड लाइन्स है वो स्काई को पॉइंट करती है, तो दैट्स वर लुक्स वेरी बैड। एंड द थर्ड नेगेटिव इफ़ यू आस्क मी, दैट इज़ द ऑटो फोल्डिंग ORVM जो है इस कार में नहीं आते हैं, जो कि बहुत बेसिक सा फीचर है और हर एक 10 लाख की कार्स में आ जाता है, बट इसके अंदर वो आपको नहीं मिलता इस मॉडल के अंदर। सो मोर और लेस फीचर की कुछ कमियां हैं। सॉफ्टवेयर्स वगैरह अभी अपडेट्स होने इनके पेंडिंग है, लाइसेंसिंग पेंडिंग है इनकी। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो की जो लाइसेंसिंग है वो पेंडिंग है इनके एंड पे, वो अभी फंक्शनल नहीं है, डिस्पाइट अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास मुझे इसका होने वाला है। प्लस अभी तक भी वो दोनों एक्टिव नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू मैं फेस कर रहा हूँ। अदर देन दैट आई डोंट फाइंड मेजर
इशू विद दिस। अब कुछ और भी ड्राइव करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको ड्राइव करते हैं 10,000 किलोमीटर के बाद हम इसका और जेन्युइन रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। कुछ और पॉजिटिव नेगेटिव इन बिटवीन मुझे मिलते हैं, मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। और अगर आपकी डिलीवरी शेड्यूल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको काफ़ी चीज़ें मैं गाइड करूँगा इसमें कि आप क्या क्या करवा सकते हैं और क्या क्या नहीं करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव है इसके बारे में आपको क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, व्हीकल को कैसे आपको केयर करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा चैनल के थ्रू। तो दैट्स ऑल फॉर द नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंसर्न। रेस्ट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द व्हीकल एंड आई रेट इट 10 आउट ऑफ 10। अगर हम सिर्फ आप कार की बात करें, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस। अगर आपकी डिलीवरी शेड्यूल है तो डोंट डू द कैंसिलेशन के लिए आप मत जाइए। अगर 4 मंथ की वेटिंग है, 6 मंथ की वेटिंग है, आप वेट कीजिए इस व्हीकल का। यू विल एंजॉय दिस व्हीकल। बहुत ही पावरफुल इंजन इस कार में दिया गया है, इस SUV में दिया गया है, और बहुत ही फन टू ड्राइव ये कार है। ओके, तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्या आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे ये कार? डेफिनेटली फ्रेंड, मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ आई हाईली रिकमेंड दिस व्हीकल टू एवरीवन हु इज लुकिंग एट SUV अंडर 20 लाख रुपीज़। अगर कोई भी SUV आप देख रहे हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं मिलता है। ये आपको ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख में कॉस्ट कर देती है, और आपको सारे फील गुड फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। माइलेज इज़ गुड, द साइज़ इज़ एक्सीलेंट, रोड प्रेजेंट इज़ एक्सीलेंट। तो यू विल गेट एवरीथिंग। अगर आपका बजट 20 लाख तक का है तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर करें और जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवाएं। कुछ इशू डेफिनेटली डिलीवरी एंड पे महिंद्रा के आ रहे हैं ड्यू टू द चिप शॉर्टेज एंड अदर काइंड ऑफ इश्यूज़ दे आर फेसिंग। दैट्स नॉट ओनली विद द महिंद्रा, सारे कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ आ रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली कंपनीज काम कर रही हैं। तो ये बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगर आप एक अच्छी बड़ी SUV देख रहे हैं अपने लिए, तो आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर दिस कार और अपने लिए बुकिंग करवाइए और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कार को रिसीव कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे। जो भी हमें कमेंट्स आए, हमने कोशिश करी आपके सारे कमेंट्स को जवाब देने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।